چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. تو آئیے ہم اپنا دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے پیچھے اس کو چھوڑا تھا. نمبر 7 جو ہمارے پاس ہے آئینہ. آئینہ بنتو کا یا امی. امن مینس انکل. انکل مینس از یہاں پیٹرنل انکل یعنی پتر. خالی مینس انکل مگر میٹرنل انکل یعنی مامو. آئینہ بنتو کا یا امی. آئینہ بنتو کا یا امی. آپ کی بیٹی کہاں ہے انکل. آئینہ بنتو کے یا امتی. آئینہ بنتو کے یا امتی. امتی مینس پوف. آپ کی بیٹی کہاں ہے, وہ آپ کی بیٹی کہاں ہے. چلیے ہم ہمارے ساتھ ایک ہاں امتی مینس پوف. ہاں نو 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 پوف 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 ہوا. ٹھیک ہے یعنی آپ کے یعنی والد صاحب آپ کے والد صاحب کی بہن. جی جی ہاں آپ کے والد صاحب. چلیے تو ہمارے ساتھ ہیں اب ایک ریڈمی ہے. آپ ذرا یہ پڑھیں نمبر 8. شباش کوشش کریں. ان کو شاید آواز نہیں آ رہی میری. غلام قادر بٹ صاحب آپ پڑھیں. سینٹینس پڑھنا ہے سر. نواں ماذا عندك يا اخي. اوپر والا نمبر 8. لك اخ يا حامد. حامد بہت اچھا. یہاں کیا آئے گا. لك اخت يا لك اخت یا سعاد. تو ہمیں چینج کرنا ہے یہاں. کیا ہمیں یہاں چینج کرنا پڑے گا. لکا اخن چینج نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ لڑکی کو بھی ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی ہے. لڑکے کو بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی ہے. تو یہاں سوال ہے الکا اخن یا حامد. حامد کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. تو ہم سعاد سے پوچھیں گے الکی اخن یا سعاد. سعاد کیا آپ کا کوئی بھائی ہے. الکا اخن الکی اخن. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نمبر 9 پڑھیے. سر یہ سعاد مذکر ہے مونث. سعاد مونث ہے. سعاد لڑکی کا نام ہے. سعاد لڑکی کا نام ہے. سر مگر بہت سارے لڑکوں کو بھی ہے. ہاں ہے یہاں تھوڑا سا ہو گیا ہے سعاد لیکن وہ اصل میں یہ نام تو ہے نہیں. وہ یہ نام ہے وہ تھوڑا سا جس کو ہم کہیں گے رانگلی پروناؤنسڈ ہوتا ہے. اصل لڑکے کا نام اگر دیکھیں وہ سعدن ہے. سین عین دال بس سعدن وہ مذکر نام ہے. اور سعیدن سعید تو واضح ہوتا ہے لیکن سعد جو ہے ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں. سعدن ہم وہاں بھی پڑھتے ہیں تھوڑا اس کو ڈیفرنٹ انداز سے. لیکن سعاد جو ہے سین کے اوپر پیش عین کے اوپر زبر اور دال کے اوپر پھر پیش ہے زبر آئے گا. تو اس کو یہ تو صرف مؤنث کا نام ہی ہے سعاد. ٹھیک ہے. ایک اور نام اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہے سعید یا سعید. وہ اس کے ساتھ ملتے چونکہ آج کل جب نام بچوں کے کرتے ہیں تو اکثر انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں وہاں اس کی انگلش ٹرانسلیٹریشن ہوتی ہے. انگلش ٹرانسلیٹریشن ہوتی ہے تو عربی کے اصل الفاظ جو ہوتے ہیں اصل لیٹر جو ہوتے ہیں وہ انسان کو پھر کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہاں صحیح. نمبر 9 سوریا جبین ہے ہمارے ساتھ. آپ پڑھیں. ماذا عندك یا اخی. ماذا عندك یا اختی. ایندا دال کے اوپر زبر پڑیں گے آپ. ماذا عندك یا اخی. بھائی آپ کے پاس کیا ہے. شاباش پڑھو پھر سے.
माजा इंदका या उखी या अखी, अखी, शाबाश। माजा इंदिकी इंदकी या या उक्ती उख्ती, या उक्ती या उख्ती, शाबाश। यहाँ याद रखिए उख्ती के, उख्ती भी उख्ती मीन मेरी बहन, ये अलिफ भी हमजा से शुरू होता है, यानी ये वर्ड भी हमजा से शुरू होता है, लेकिन इसके ऊपर पेश है उख्तुन। लेकिन अखी भी हमजा से शुरू होता है, इसके ऊपर है जबर अखी, या अखी या उख्ती। मादा, शाबाश, माजा इंदका माजा इंदका या अखी, उखी अखी हाँ, माजा इंदिका इंदकी, या इंदकी या इंदकी या उक्ती। उख्ती, बहुत अच्छा, शाबाश। आपके पास क्या है भाई, आपके पास क्या है? माजा इंदका। और बहन आपके पास क्या है? क्या मादा है? इंदकी, इंदकी, शाबाश। आप ही पढ़िए नंबर 10। अस्सलामु अलैका या अबी बहुत अच्छा। अस्सलामु अलैकी या या अम्मी या उम्मी, या उम्मी। अस्सलाम वालेकुम या अबी, अस्सलाम वालेकुम या उम्मी। सलामत हो आप पर, सलामत हो आप पर, शाबाश। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। अन्निस अल्फाइला, अन्निस, अन्नस युअन्निस तानीस, मीनस मुअन्नस बनाना। फाइला, फाइल को मुअन्नस बनाओ। फी कुल्लिम मिनल जुमल अलातिया, हर आने वाले जुमले में, हर आने वाले जुमले में, हर आने वाले जुमले में। लेकिन यहाँ देखिए, अब आप फॉर्मली जुमले फैलिया से मुतारिफ हो रहे हैं, जुमला फैलिया से, क्योंकि जुमला इस फैलिया तो यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन मिलेगा। जब आपको जुमला फैलिया का इंट्रोडक्शन होगा तब आप फाइल को चेंज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। फाइल को चेंज करने से पहले फाइल को समझना पड़ेगा कि फाइल कहाँ होता है। देखिए जुमला फैलिया मीन्स, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, वो जुमला जो फ़ैल से शुरू हो रहा हो। किससे शुरू हो रहा हो? फ़ैल से। फ़ैल से। ये फ़ैल जो है माजी भी हो सकता है, मुज़ाहिरा भी हो सकता है, अमर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे फ़ैल से शुरू होने वाला जुमला जो है ये जुमला फ़ैलिया होता है। इस जुमला फैलिया में आप दो बुनियादी जुज देखते हैं, एक फैल क्या है, दूसरा इस फैल को करने वाला, अंजाम देने वाला कौन है, यानी जिसको इंग्लिश में आप सिंपली कहते हैं सब्जेक्ट कौन है। आप समझ रहे हैं ना? उसी सब्जेक्ट को हम यहां कहेंगे फाइल। फाइल मीन्स फैल को करने वाला, फैल को करने वाला। जैसे मिसाल देखिए, खरजा मुहम्मदुन मिनल बैति, मिनल बैत। खरजा काम क्या है इस सेंटेंस में? खरजा निकलना है ना, निकलना, निकलना काम है। ये काम किसने अंजाम दिया है? मोहम्मद। तो मोहम्मद इज फाइल, मोहम्मद इज फाइल, मोहम्मद इज फाइल। शाबाश, ये क्लियर हो गया। जैसे आपने जुमला इस्मिया को पढ़ते समय ये सीखा था कि जुमला इस्मिया के दो बुनियादी जुज, एक मुब्तदा दूसरा खबर, ये दोनों मरफू होते हैं। मरफू मीन्स पेश वाले, पेश वाले। यानी अगर आप लिखना, अगर आपको लिखना है फॉर एग्जांपल अल किताब जदीद, किताब नहीं है, ये जुमला इसलिए है क्योंकि किताब से शुरू हो रहा है, किताब इसम है। अल किताब जदीद, तो दोनों को पेश वाला पढ़ेंगे आप। अल किताब जदीदुन, अल किताब जदीद। शाबाश। यहाँ आप तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि फाइल जो है इसको भी आप पेश वाला ही पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे खराजा मुहम्मदुन, ये तो दो पेश के साथ, और कभी एक ही पेश के साथ पढ़ा जाएगा, कभी एक ही पेश के साथ पढ़ा जाएगा। खराजा मुहम्मदुन मिनल बैती।
मिनल बैत, घर से। तो ये फाइल के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक ये कि ये जुमले में जो काम हो रहा हो या हो चुका हो उसको करने वाला होता है। नंबर दो, ये पेश वाला होता है। लेकिन यहाँ तो दो पेश है, तनवीन है। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दो पेश हुए एक पेश। हमारे लिए तो जब आप नाहु पढ़ते हैं तो उसमें तो आप ये चीज तो वाज़ेह है कि कहाँ दो पेश आएंगे, कहाँ एक पेश आएगा। अगर इल्फाम वाला कोई इसम है तो वहां एक ही पेश आएगा, अगर औरत का नाम है तो एक ही पेश आएगा, अगर कोई इसम मुजाफ है उसके बाद मुजाफ इलैह है तो मुजाफ के ऊपर एक ही पेश आएगा। ये दो तीन चार चीजें तो आपने पढ़ी हैं, है ना? आप खामोश क्यों हो गए? सभी लोग खामोश क्यों हो गए? जी जी सही है। सही में ये पढ़े हैं ना, ये आपने पढ़े हैं ये चीजें। मतलब जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था उस वक्त मैंने बोला था कि आप जब इसम को इस्तेमाल करेंगे वहां आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे उसको दो पे, अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर पेश आ जाएगा तो आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कायदे को मद्देनजर रखकर कि उसके ऊपर मुझे दो पेश इस्तेमाल करने हैं या एक ही पेश इस्तेमाल करना है। खराजा मोहम्मदुन पढ़ना है मुझे या खराजा मोहम्मदो? मोहम्मदुन। हाँ, चूंकि मोहम्मदुन जो वर्ड है ना इसके साथ इल्जाम है और ये मुज़क्कर नाम है, अरबी जबान का अपना नाम है, तो इसके ऊपर दो पेश आएंगे, खालिदुन हामिदुन। डॉक्टर साहब अगर ये या मोहम्मद होगा तब हम उस वक्त कहते हैं कि पेश वाला होगा, क्योंकि दो पेश तो आएगा ही नहीं उस वक्त। बिल्कुल। तो इस वक्त हमें इसको छोड़ना है कि इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये दो पेश वाला है तो इस वक्त वो बात है। हाँ, ये यानी ये पेश वाला नहीं है, इसको मतलब दो पेश तनवीन भी कबूल करता है तो इसको देना है, तनवीन ही पढ़ना है। तो जबकि या मोहम्मद के वक्त हम या मोहम्मदुन नहीं पढ़ सकते। हाँ, बेशक बेशक बेशक, ये सही बात है। हाँ, जो हर्फी निदा और मुनादा का मसला है वो एक अलग मसला है, वो अलग मसला है। क्योंकि अगर यहाँ भी फॉर एग्जांपल इस मोहम्मद जो यहाँ कलमा है इससे पहले भी या लगाएंगे तो फिर एक ही पेश आएगा, ये तो कायदा है। लेकिन यहाँ चूंकि वो मसला नहीं है, यहाँ वो मसला नहीं है, यहाँ तो मसला ये है कि भाई फैल इस्तेमाल हो गया, इसके बाद है फैल को अंजाम देने वाले इस इसम का नाम। ठीक है, खराजा निकला, कौन निकला? मोहम्मदुन, मोहम्मद निकला, तो यहाँ तो इसको पेश वाला आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम ये सोचेंगे कि भाई क्या कोई चीज मौजूद है जो इस मोहम्मद के ऊपर एक ही पेश हमें कहेगी कि बस एक पेश इस्तेमाल करो, तनवीन इस्तेमाल मत करो। तो अगर वो चीज मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वहां तो या इस तरह का कोई और चीज मौजूद नहीं है, ना अलिफ-लाम है, ना ये मुजाफ है, ना या और कुछ है। या मोहम्मद के साथ सिफत नहीं जोड़नी है, जैसे मोहम्मद रसूल जैसे पढ़ते हैं मोहम्मद ना, सिफत तो अलग बात है। तो सिफत जो है वो मौसूफ उस वक्त पेश होएगा ना। नहीं, सिफत मौसूफ के ऊपर हावी नहीं होती है। सिफत कैन नॉट डिटरमाइन मौसूफ, मौसूफ विल डिटरमाइन थिंग्स फॉर सिफत। आप समझ रहे हैं ना? यानी अगर मोहम्मद वर्ड है इसके बाद इसकी सिफत लाएंगे तो मोहम्मद बताएगा, सिफत के ऊपर जेर जबर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश आएगा, क्या आएगा? वो मोहम्मद बताएगा, यानी मौसूफ बताएगा, न कि सिफत बताएगी कि मोहम्मद के ऊपर क्या लिखेंगे। जब हम सर पढ़ते हैं ना मोहम्मदुर रसूल वहां तो एक ही पेश पढ़ते हैं। आप एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आपके कहने का मतलब है हम पढ़ते हैं मोहम्मदुर रसूल, वो दुर नहीं है, असल में है मोहम्मदुन, फिर है रसूलुल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये आपने कहना है ना। अब आप इसको पढ़ते वक्त जो है वो इदगाम करते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है ना? मोहम्मदुर, वो तजवीद का मसला है। लेकिन यहाँ मसला वो है, आपका मसला ग्रामर का मसला जो यहाँ आपको समझना है वो ये है कि भाई
کہ محمد रसूलुल्लाह हाँ रसूलुल्लाह पे बताता है कि यहाँ सिफत मौसू की बात। हाँ बिल्कुल नहीं, इनका क्वेश्चन थोड़ा वो कंफ्यूज इसलिए हो गए कि मोहम्मदुन जो है इसके ऊपर 2 पेश है लेकिन सिफत के ऊपर 1 ही पेश है। ये इसलिए है क्योंकि सिफत जो है यहाँ मुजाफ इस्तेमाल हो गई है ना। मोहम्मद अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफत यहाँ बतौर मुजाफ इस्तेमाल हो गई इसलिए 1 ही पेश आ गई, अदरवाइज हम कहते हैं मोहम्मदुन रसूलुन इस तरह। और यहाँ आप शायद अब्दुल कादिर ये भट्ट साहब बात कर रहे थे, गुलाम कादिर भट्ट साहब, सवाल ये आप ही का था। और यहाँ याद रखिए, हाँ याद रखिए, देखिए मोहम्मदुन वर्ड जो है ये खास है, ये इसमें मारिफा है, आलम है, प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश जानने वालों के लिए प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन मीम हाई मीम दाल मोहम्मदुन ये प्रॉपर नाउन है। अगर मुझे इसकी सिफत लिखनी है तो वो भी खास होनी चाहिए, यानी मारिफा होनी चाहिए। रसूल चूंकि ये क्या है, ये नकिरा है, तो इसको खास बनाने के लिए मैं लिखूंगा ar-रसूल मोहम्मद, और अब ये मौसूल सिफत बन जाएगा। लेकिन जब ये रसूल बतौर मुजाफ इस्तेमाल हो गया अल्लाह की तरफ तो अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं रही, अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं रही, इसलिए आ गया मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, शाबाश। रसूलुल्लाह जी एक और सवाल था, ये शेख आपने फरमाया था कि या तो फ़ैल जुमला फ़ैलिया में या तो फ़ैल होगा माजी या मुजारिया या फ़ैल अमर हो सकता है, यही 3 हो सकते हैं या कुछ और भी? मुझे समझे आप कहाँ ले रहे हैं मुझे। हाँ वो चौथा भी हो सकता है ना, पहले नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहाँ चूंकि वहां उससे पहले ला आता है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं हमेशा उस पॉइंट को छोड़ता हूं जो कंफ्यूज कर सकता है आपको इस लेवल पर, मैं उस पॉइंट को डिलिबरेटली छोड़ता रहता हूं। क्योंकि अगर आप फेल इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल खरजा मोहम्मदुन, क्लियर हो जाए भाई खरजा फेल है, यखरुजु मोहम्मदुन, क्लियर हो गया भाई ये फेल है, उखरुज मोहम्मद, क्लियर हो गया ये फेल है, ला तखरुज मोहम्मद, ये भी फेल है। लेकिन जरा ला थोड़ा कंफ्यूज करेगा बिगिनर्स को, इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। चलिए ये क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब हम करेंगे, अब हम आइए अपने असली पॉइंट पर आएंगे। देखिए पॉइंट क्या है, खरजा मोहम्मदुन, हमें सवाल था अन्निसिल फाइला, फाइल को मुअन्नस बनाओ, तो फाइल कौन है यहाँ? मोहम्मद है ना। जब हम इसको मुअन्नस बनाएंगे, मुअन्नस देखिए इसने मुअन्नस बना दिया मोहम्मद को आमिना, फॉर एग्जांपल आमिना, तो फाइल के मुताबिक फेल आएगा मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से, तो ये बन गया खरजत, खरजत आमिनतु मिनल बैत, आमिना घर से, जैसे उर्दू में निकला और निकली, बिल्कुल निकला मोहम्मद, निकली आमिना, आमिना निकली, शाबाश। खरज मोहम्मद मिनल बैत, खरजत आमिनतु मिनल बैत, आमिना निकली घर से। ठीक है, अब इसी के मुताबिक आप मुझे ये बताएं, ज़हब अल मुदरिसु इलल फस्ल, अल मुदरिसु, पहले इसमें पहचानिए, इसमें फाइल कौन है? अल मुदरिस, अल मुदरिस, मुदरिस ने कौन सा काम किया है? ज़हबा, ज़हबा का काम किया, जाने का काम किया है। बहुत अच्छा, तो अब इस मुदरिस को मुअन्नस बनाइए पहले, अल मुदरिसतु, बहुत अच्छा। तो जब आप अल मुदरिसतु के बारे में बात करेंगे तो ज़हबा क्या बनेगा? ज़हबत, बहुत अच्छा, ज़हबत अल मुदरिसतु इलल, ये तो सेम रहेगा, इलल फासले सेम रहेगा, जैसे मिनल बैत सेम रहा वैसे यहाँ इलल फासले सेम रहेगा। बहुत अच्छा। नंबर 2, ज़हबतल मुदर्रिसु भी कह सकते हैं। नहीं ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ देखिए
तअम्मल मा यली जलसत अत्तालिबतु, जब जलसत इस ता, ये जलसत की ता से ये साकिन है, इसके बाद इल्फलाम वाला कोई फाइल आएगा तो इसको हम जेर दे देंगे, जलसत तालिबतु। जी 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 सर। इसकी वजह यह है कि चूंकि मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त बताया था कि जेर जो है, जेर हमेशा इसम के नीचे आती है, कभी फेल के नीचे नहीं आती। सर दूसरा ऐसे ही रह गया। हाँ मैं अभी हम जाएंगे वहां, अभी हम वहां जाएंगे। पहले आप ये सीखिए कि फेल के नीचे कभी जेर नहीं आती है। जब फेल के नीचे जेर हो, अगर फेल के नीचे जेर हो तो आप समझें कि कुछ गड़बड़ है, कोई एक्सेप्शन है, कोई ये है, कोई मसला है, इसलिए जेर आ गई। हम यहाँ जब इस ज़हाबा या जलसा के इसको हमने मोनस बना दिया, इसके बाद जो अलिफ वाला ये फाइल है, चूंकि इसका अलिफ हमज़तुल वसल है, लाम चूंकि साकिन रहेगा, तो हमें जब इसको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, या तो इसको ब्रेक करके पढ़ना होगा। ज़हाबत अल मुदरिसतु, वो सही तरीका नहीं है। सीखने के लिए तो तरीका सही है, लेकिन बोलने के लिए कल सही तरीका नहीं है, और पढ़ने के लिए सही तरीका नहीं है। तो हमें इसको कैसे पढ़ना है? हम कहेंगे ज़हाबत अल मुदरिसतु के बजाय पढ़ेंगे ज़हाबतिल मुदरिसतु। जैसे इसने यहाँ कहा जलसतित तालिबतु। क्लियर हो गया? ये जेर मोनस की वजह से भी आ गया शायद। ना वो जेर आप वहां दे रहे हैं, कहाँ? ज़मीर में, अंति। ये जेर सिर्फ आपकी जबान को फ्लो अता करने के लिए, यानी जैसे अगर मैं ये कहूं ज़हाबत अल मुदरिसतु इलल फासले, तो इसके बजाय अगर मैं ये कहूं ज़हाबतिल मुदरिसतु इलल फासले, ये जरा फ्लो अता करने के लिए आपको। अच्छा यहाँ बताएं डॉक्टर साहब, ये ज़हाबतल मुदरिसु क्यों नहीं आएगा? शाबाश। क्या ज़हाबतल मुदरिसु इलल फासले कैसे आएगा? मतलब वो क्यों आना चाहिए था आपको? क्यों नहीं आएगा ज़हाबतल? हाँ, इसलिए नहीं आएगा। देखिए, ये खराजा मीन्स वो चला गया, यानी मोहम्मद चला गया। ना आप हैं ना मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं, आप मेरी मुखातब है, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आप सेकंड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मोहम्मद की। खराजा ये फेल है और ये फाइल। ये खराजत जो है, यहाँ फेल है खराजा, ये ता जो है फैली हुई ता, ये अलामत तानीस यानी मोनस की अलामत है। यानी मैं आपको इशारा दे रहा हूं कि भाई ये काम किसी मोनस ने किया है, किसी औरत ने किया है। फिर मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसका नाम आमिना। खराजत आमिना तो मिनल बैत। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि आइना आमिना, आमिना कहाँ है? आप कहते हैं खराजत, वो निकले। खराजत सिर्फ ता ऐड करने से बना दिया आपने, खराजत तो चली गई। ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल कोई और लेटर ऐड करें इसमें, आखिर क्यों करें लेटर ऐड? कैसे कर सकते हैं हम कोई लेटर ऐड? हमें तो जरूरत ही नहीं है। जैसे उर्दू में आपने कहा, मैंने कहा कि आमिना कहाँ है, आप कह रहे हैं चली गई, या ज्यादा से ज्यादा कहते हैं वो चली गई, बस। तो जो सेंटेंस का तकाजा है वही तो आप पूरा करेंगे ना। आप इस सेंटेंस को खामखा मतलब कोई लंबी चौड़ी तो खींचेंगे नहीं है, क्योंकि जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको ये जहन में लाना है कि ये लैंग्वेज दुनिया में किसी जगह लोग बोलते हैं, वो कैसे बोल रहे होंगे, उनके उस नेचुरल फ्लो को समझने की कोशिश करनी है। ये बात सही है ना? हाँ बिल्कुल सही। ये समझा। ज़हाबतल मुदर्रिसु या ज़हाबतिल मुदर्रिसु, ये बात यहाँ पर पूछा था। शाबाश। असल में आपने शायद ये, पहले मैं बिलाल मलिक साहब से कहूँ कि आप जरा बताएं आपने क्या समझा इनके सवाल से। मैंने समझा कि सर ये बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब कि अल मुदर्रिस जो है उसका जो
तानिस है वो अल मुदर्रिसतु है, और हाँ उसके बाद जो ज़हबा फेल है उसका ज़हबत है। तो बिल्कुल प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं कि अगर यही कायदा है तो हम क्यों ये ज़हबतिल मुदर्रिसतु बोलेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर ये चीज है तो देखिए, जब आप ज़हाबत को ज़हाबत बनाते हैं ना तो ये ता फैली हुई ता है। जब आप अल मुदरिस को अल मुदरिसतु बनाते हैं तो वो गोल ता है। इन दोनों में फर्क है। मोनस को इसम, मोनस मुजक्कर को इसम इसम मुजक्कर को मोनस बनाते वक्त आप गोल ता ऐड करते हैं, न कि फैली हुई ता। जी बिल्कुल सही। मुहंदिसुन मुहंदिसतुन गोलता के साथ, मुदरिसुन मुदरिसतुन गोलता के साथ, ताजिरुन ताजिरतुन गोलता के साथ, तबीबुन तबीबतुन गोलता के साथ। लेकिन जब आपको फैल को मोनस बनाना है थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में, तो आप फैली हुई ता लिखते हैं। और वो याद रखिए, वो ये तो पहला फर्क हो गया। दूसरा फर्क, जब आप मुजक्कर को यानी मुदरिस को ये इसम को बनाएंगे मोनस, इसके ऊपर गोलता लगाएंगे लास्ट में, तो वो गोलता जो है उसके ऊपर आप उसके ऊपर पेश भी आएगा, जबर भी आएगी, जेर भी, जो पोजीशन होगी सेंटेंस में इस इसम की। लेकिन जब आप ये फैली हुई ता लगाते हैं मोनस में, इसके साथ सिर्फ ये सुकून आएगा बस। खरजत, ज़हाबत। डॉक्टर साहब मैं अपने सवाल को थोड़ा सा आसान बनाऊंगा। ज़हाबतिल मुदर्रिसतु है और ज़हाबतल मुदर्रिसु, अगर ये एक मिनट मुज़क्कर ही मानता हूँ तो ज़हाबतुल मुदर्रिसु लगेगा। एक मिनट क्या मुझे आप बताएं, क्या आप कह रहे हैं? ज़हा जी मैं कह रहा हूँ कि ये मुदर्रिसतु तो मोनस है। हाँ। तो ज़हाबतिल मुदर्रिसतु, ज़हाबतिल मुदर्रिसतु आपने पढ़ाया। अगर मैं इसको ज़हाबतिल मुदर्रिसतु, ठीक है, यही आपने। अगर मैं मुदर्रिस को मुज़क्कर बोलूं, ज़हाबत, तो ज़हाबतल मुदर्रिसु आएगा, ज़हाबतल मुदर्रिसु आएगा। हाँ या देखिए, तब भी ज़हाबतिल मुदर्रिसु आएगा। नहीं, ना ज़हाबतल आएगा ना ज़हाबत आएगा। वो नहीं अगर आप मुज़क्कर, अगर आप मोनस के लिए है, मुज़क्कर में नहीं है। सर मुझे लगता है कि हमें वो गर्दान सीखनी चाहिए यहाँ, इसी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे। नहीं, क्योंकि आज जो जमाना है यहाँ आपको गर्दान पढ़ने की ना जरूरत है, और वो गर्दान ज्यादा कंफ्यूज करती है बोलने में आपको। यहाँ सिर्फ मुझे समझ आया सवाल इनका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने जो मतलब एक तरह का सवाल जो पूछा, या थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए, मैं चाहता हूँ ये कंफ्यूजन आप सब लोग शेयर करें, ठीक है? देखिए असल, देखिए जवाब, अब मुझे आप जवाब मतलब जो है इसके देने की जो है ये दीजिए, आप मौका दीजिए। देखिए प्रोफेसर साहब से मैं पहले बात कर रहा हूं, तो आपके साथ भी, इसकी वसातत से आप सबके साथ, असल फेल है ज़हाबा, ठीक है ना? ज़हाबा मीन्स वो एक फर्क चला गया। ज़हाबा मीन्स ही वेंट। मैंने ही को ब्रैकेट में लिखा इसलिए क्योंकि इसमें एक ज़मीर छुपी हुई है, ज़मीर मुस्ततिर। जैसे मैं आपसे कहता हूं ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, आप कहते हैं ज़हाबा, यानी असल मुराद है यानी हुआ ज़हाबा, हुआ ज़हाबा। लेकिन जब मैं लिखता हूं ज़हाबत, याद रखिए इस ता के ऊपर सुकून है, सुकून मीन्स जज़म है। ज़हाबत, इट मीन्स she went. It means she went. So ज़हाबा में जो तस्वुर था ही, इस फैली हुई ता ने उसको बना दिया she। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस ज़हाबा और ज़हाबत को इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। मैं आपसे पूछता हूं ऐना खालिदुन, अब खालिद कहाँ है? आप कहते हैं ज़हाबा इला सूक, बाजार गया। फिर मैं पूछता हूं अब ऐना आमिना, तो आमिना कहाँ है? आप कहते हैं ज़हबत इलल मदरसती। वहां आपने सिर्फ कहा ज़हाबा और यहां आपने ज़हाबत कहा।
अब प्रोफेसर साहब ने जो सवाल किया कि ये वर्ड जो ज़हाबत है, अगर इसके बाद अल्फलाम वाला वर्ड है, मिसाल आप कहते हैं ज़हाबत ज़हाबत अल मुदर्रिसतु इला सूक डैश 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 वगैरह ज़हाबतिल। तो हमने कहा कि भाई अगर ये ज़हाबत है, चूंकि इसके बाद अल्फलाम वाला वर्ड है, तो इस ज़हाबत के सुकून को हटाकर इसके नीचे पढ़ने के लिए एक जेर लगा देते हैं, ज़हाबतिल मुदर्रिसतु। अब प्रोफेसर साहब ने क्या किया, और आप लोगों ने इस कंफ्यूजन में मतलब मुझे लगा शरीक हो गए, आपने इस दूसरे सेगे को असल सेगा बना दिया, यानी रूट वर्ड बना दिया। इसलिए आप कहते हैं कि ये वर्ड जो है उस वर्ड को, यानी जो असल था रूट वर्ड जो था ज़हाबा, इसको क्या करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए थिंग्स को। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कह रहे हैं अगर यहाँ आ गया ज़हाबतिल मुदर्रिसतु, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है सॉरी, आप मुझे चेक करेंगे कि अगर मैंने कहीं इधर उधर बोला तो ज़हाबा अल मुदर्रिसु, यहाँ भी तो अल्फलाम वाला फाइल आ गया ना, यहाँ भी तो अल्फलाम वाला फाइल आ गया। तो प्रोफेसर साहब के कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ अल्फलाम वाला फाइल आ गया तो नहीं, ठीक है आ गया, ये तो आ जाएगा। मैं कहता हूँ द टीचर वेंट टू द मार्केट, तो मैं इसका ट्रांसलेशन अरबी में कैसे करूँ, ज़हाबा अल मुदर्रिसु। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ मोनस के लिए हम इसको जेर लगाएंगे, पढ़ेंगे ज़हाबतिल मुदर्रिसतु, तो यहाँ क्यों नहीं कहेंगे ज़हाबतल मदरसतु, ते को ता क्यों नहीं बनाएंगे? इसका सिंपल जवाब है कि जब आप इस ते को पढ़ते हैं, ये असल में अलामतुल मोनस है। अगर आपको मुज़क्कर पढ़ाना, मुज़क्कर सेगा इस्तेमाल करना है, आप अलामतुल मोनस को कैंसिल करेंगे, तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आप उसको कैंसिल कर रहे हैं, आपके पास रह गया फिर से वही रूट वर्ड, इसको बोलते हैं हम क्या, रूट वर्ड। हाँ, रूट वर्ड, ये रूट वर्ड ज़हाबा। और इस ज़हाबा के का आखिरी लेटर जो है बा, इसके ऊपर जबर मौजूद है। बिल्कुल, वो मसला तब पैदा आ गया क्योंकि ये ज़हाबत का आखिरी लेटर जो ता जो था, ये साकिन था, ये ता साकिन, ये आखिरी लेटर साकिन था, इसलिए हमें उसको हरकत देने के लिए जेर लगानी पड़ी ताकि हम इसको दूसरे साकिन हरफ के साथ मिलकर पढ़ सकें। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन फ्लो के लिए, अब क्वेश्चन है सर जेर ही क्यों, जबर क्यों नहीं दे दी, पेश क्यों नहीं दे दी, ये क्वेश्चन है ना। अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के दिन पढ़ाया था कि हमारे पास दो बड़ी चीजें हैं, एक है भाई इस्म और दूसरा है क्या, दूसरा है फ़ैल। ये दो बड़ी चीजें हैं। अब हमारे पास इसके अलावा है तीन हरकतें, एक है एक है पेश, दूसरा है जबर और तीसरा है जेर। ये तीन हरकतें हमारे पास है मौजूद। यानी जब आप किसी इस्म को या फेल को इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई ये पेश वाला है, जबर वाला है या जेर वाला है। मैंने आपको बता दिया कि पेश और यानी पहले दो जो हैं पेश और जबर, ये दोनों के ऊपर आते हैं, इस्म के ऊपर भी आते हैं, फेल के ऊपर भी आते हैं। लेकिन जेर जो है, जेर सिर्फ इस्म के साथ आती है। ये जेर, इसलिए मैं इसको नीचे लिखूंगा, ये इस्म के ऊपर, इस्म इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ जेर, दो जेर मैंने लिखी, एक जेर में ताकि दूसरे जेर से ये दिखाई दे रहा है। इस इस्म के साथ जेर आएगी, नो फेल के साथ नहीं आएगी। और फेल जो है फाएलाम, फेल जो है, इस फेल इज इक्वल टू फेल के साथ क्या आएगा, इसके साथ सुकून, कंट्रोल जेड। अच्छा, फेल के साथ, चलो ये तो गायब हो गया, फेल के साथ क्या आएगा, फेल के साथ सुकून आएगा, यानी जज़म कभी इस्म पर नहीं आती है। जब आपने एक फेल को जेर दे दी,
चूंकि जेर तो सिर्फ इसम के साथ आती है, फेल के साथ इसम नहीं आता है, इस फेल के साथ जेर नहीं, ये क्या जज्म नहीं, ये नहीं आता, इसम के साथ जज्म नहीं, सुकून नहीं आता। तो जब आपने इस फेल को जेर दे दी, क्योंकि फेल इसके साथ जो जेर नहीं आती थी, तो वहीं पे आपको पता चला कि कोई चीज एक्सेप्शनल हो गई यहाँ, जिसकी वजह से हमें इसको जेर देनी पड़ी, क्योंकि जेर इस फेल के साथ नहीं आती है बल्कि सिर्फ इसम के साथ आती है। अगर हम जबर देते, क्योंकि जबर फेल के साथ आती है, तो कोई कंफ्यूजन हो सकता था। अगर हम पेश देते, पेश भी फेल के साथ आता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अरब वालों ने क्या किया, उन्होंने इसके ऊपर वो हरकत लगा दी जो फेल के साथ नहीं आती है। वजह यह है, अभी जो मैम कह रही थी कि भाई हमें तो ये करना चाहिए, क्या हमें गर्दान पढ़नी चाहिए, मैं गर्दान के बजाय आपको ये कहूंगा कि नहीं, गर्दान का एनालिसिस करना चाहिए हमें। जैसे मैं लिखूंगा फ़अला, फ़अला दूसरा वर्ड है, दूसरा से गया है फ़अला माले फ़अला, तीसरा है फ़अला वा फ़अलू, मैं फिलहाल 3 से ही लिखूंगा। अगर मैं आपको कहूं कि इसका ओरिजिनल जो है रूट वर्ड वो है फ़अला, इसमें ही छुपा हुआ होता है, ही डिड दिस वर्क। लेकिन जब आप फ़अला पढ़ेंगे तो इसमें अलिफ जो है ये बतौर फाइल है, ये ज़मीर है, इसको बोलते हैं अलिफुल इस्नाइन, यानी ये सब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश में आप, जैसे आप फ़अलू पढ़ेंगे तो ये वाव जो है यहाँ, ये वाव यहाँ प्रोनाउन है, इट मीन्स दे ऑल मेन। तो अरबिक में आप जब वो लेटर लिखते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा लेटर या कोई हरकत स्ट्रोक, उसकी मीनिंग होती है। ये मेतामत कि आप जब चाहें उसको इस्तेमाल करें, मैं जब चाहूं जो चाहूं इस्तेमाल करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने फ़अलू, असल वर्ड है फ़अलू, तो मैंने इसके बाद अलिफ बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? अरब के लोगों ने इस अलिफ को क्या बस यूं ही बढ़ा दिया? हालांकि ये अलिफ जो है इस सेगे का हिस्सा नहीं है। अलिफ इस सेगे का सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको वाव जो है, वाव, ये वाव बहुत तरह का है, दो चार तरह का है अरबी में। मिसाल आपके पास फेल होता दआ, सॉरी दआ, ये असल फेल है, जो असल फेल है, असल है दावा, दावा। तो अब दावा जो है, चूंकि जबर जेर के बगैर जब लिखेंगे तो इसके ऊपर भी, तो इसके बाद भी आखिर में भी तो वाव है। या इसका मोनस देखिए, सॉरी इसका मुजाहरा, ये मुजाहरा देखिए, यदउ, इसके आखिर में तो वाव है। अब इस वाव और फ़अलू के वाव के दरमियान हम इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें? आपको कैसे पता चले कि ये वाव जो है ये वावुल जमा है, जमा की वाव है, और कैसे पता चले कि ये वाव जो है ये इसकी अपनी वाव है, यानी हरफुन असलियुन, असली हरफ है, ओरिजिनल लेटर है इस वर्ड का। तो इसलिए हमने वावुल जमा के बाद अलिफ बढ़ा दिया। फ़अलू जब लिखा तो वहां हमने एक अलिफ बढ़ा दिया। इसी तरह से जब आप यहाँ ज़हाबा और ज़हाबत, यहाँ आप वापस आएंगे, ज़हाबत को हमें अलिफ लाम वाले हरफ के साथ पढ़ना है। जैसे ज़हाबा अल मुदरिस, ज़हाबत अल मुदरिसतो, तो मुझे यहाँ जेर लगानी पड़ेगी, क्योंकि जेर फेल के साथ नहीं आती है। जो भी इसको पढ़ेगा, सुनेगा इस सेंटेंस को, वो खुद अंदाजा करेगा कि इसने क्यों इस जेर को इस्तेमाल किया। ये ज़मीर है इसकी, ठीक है? नहीं, ये ज़मीर नहीं है, ये अलामत तानीस है। अलामत तानीस, वो नहीं, फर्क है, अलामत तानीस और ज़मीर में फर्क है। बहरहाल हमारे पास सिर्फ कुछ 15 सेकंड रह गए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम इस कंफ्यूजन से फिर शुरू करेंगे और इसको वाज़ह करके इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। इस कंफ्यूजन से हम निकल गए। चलिए माशाअल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये सेंटेंस मैं सब लोगों से सुनूं, तब होगा। ओके सर, खुदा हाफिज। इसको याद रखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो गए इसके बारे में और, तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी या